Namaskar. On behalf of My Retired Life Foundation, we welcome you to this very unique initiative. While India is a very young country with a median age of hardly 27, but the fact remains that India also has a substantive portion of its population of elderly citizens of more than 60 years of age. As per the 2011 census, the population of elderly in India was roughly 104 million, which constituted 8.6% of the total population. And the figure must have gone up to about 120 million now. And that represents a substantive chunk of the population per se. And this population suffer from various types of the problems and issues, the physical problems, the financial problems, they have psychological problems and many other similar type of problems. So we on behalf of My Retired Life Foundation thought that through a series of virtual skits and playlists, we will try to bring out some of these issues and possible solutions. Idea is that we would try to bring forth the problems with the solutions in mind of this type of people. We hope you will like this initiative. आइए तो हम अपना पहला स्किट देखते हैं. आइए चलिए. Hi Nirmala madam, may I please come? Please come in, sir. Have a seat, please. Pleasure meeting you after a long time. How's everything, sir? Everything is fine madam. Hope everything is okay at the home also. Sir, everything is going on well over here. By the way, she's Sapna, a social worker, post-retirement. She comes here once a week. Oh great, nice meeting you madam. Thank you very much, sir. I have heard a lot of good things about you. नमस्कार सर, हम आपकी ही वेट कर रहे थे. आई होप यू डिड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम रीचिंग द स्कूल सर. ऊपर के कक्ष में सब टीचर और स्टूडेंट्स आपकी ही प्रतीक्षा में बैठे हैं. वी आर ऑल रेडी फॉर द इंस्पेक्शन सर. रमेश, रमेश, सर के लिए चाय लेके आओ. No thanks madam, thanks very much. ओके रमेश, चाय मत बनाओ. निर्मला जी, आप थोड़ी देर के बाद सर को ऊपर लेके आइए. ओके, आई विल गो एंड मेक ऑल द अरेंजमेंट्स. Who is this lady madam? I haven't seen her before. Sir, she has come to us, say, about 2 months back, suffering from serious dementia. Yes, sir, serious dementia. She was earlier the principal of a school. She has forgotten everyone, but still thinks she is the principal. She welcomes every guest here on behalf of the school. She thought you were the school inspector who has come here for inspection. I used to be a teacher when she was the principal. She was such a fantastic human being with teachers and students. Oh, now it is very difficult to recognize her. It happens madam, it is a very severe case of dementia. You know, you need to take care of these people very specially. They need a very specific attention. You know, they live in their own world and we need to go into their world by being kind and empathetic. That's the only way we can support them. Okay madam, let's now go and meet those two special invites we talked about.
What's happening, madam? Who is he? New inmate? Sir, he is Naveen Dugal, a senior retired army officer. Another case of severe dementia. Severe dementia, sir. You know, he is hyperactive and sometimes gets violent. His family has left him here. Throughout the day, he keeps walking up and down, and banging on the door, trying to go out. We are very much concerned about him, very much concerned. Oh, I understand. And see, madam, you know, people at this stage of serious dementia, they're very unpredictable, and sometimes they become extremely violent also. You must take care of him very, very watchfully. And please keep the doors locked so that he's not able to go out. And also, please check, Nimala madam, that consult our geriatric surgeon and try to get some tranquilizer if he needs it. Yes, sir, we keep the doors locked. As suggested by you, we will talk to the geriatric consultant. A very tragic case indeed. A very tragic case. Now, sir, I will take you to the two special inmates. I will take you first to the room of Mrs. Sandhya, who has joined us just a week ago. Namaskar, madam. कुछ तो बोलो मैडम, मैं आपका भाई समान हूं, आपका मदद करने के लिए आया हूं, कुछ तो बोलिए मैडम। क्या बोलूं क्या बोलूं सर, मुझे ना जिंदगी से बहुत डर लगता है, बहुत डर लगता है सर, बहुत डर लगता है। ऐसा मत बोलिए बहन जी, जिंदगी तो बहुत हसीन चीज है जीने के लिए। मेरी भी थी सर, मेरी भी थी। पति, 2 बेटे, घर, कार, सुख, सब आनंद था, आनंद की जिंदगी थी। 5 साल हुए सर, 5 साल हुए, वो गुजर गए। इन्हीं हाथों से मैंने दोनों बेटों की शादियां करवाई, लेकिन फिर क्या हुआ? चले गए वो अमेरिका चले गए। ये तो बहुत अच्छी बात है, वो तो वहां खुशहाल की जिंदगी जीते होंगे, आप भी तो जरूर अमेरिका गए होंगे। हाँ सर, 2 साल पहले गई थी मैं, पर उसके बाद न वो यहाँ आए न मैं वहां गई। पहले तो रोज दिन में 1 बार फोन आता था, लेकिन अब तो मुश्किल से हफ्ते में 1 बार फोन आता है सर, मुश्किल से 1 बार। पोते पोतियों को तो देखने का अवसर ही नहीं मिला मुझे सर, को उनको देखा तक नहीं मैंने। क्या दुर्भाग्य पाया है मैंने, क्या दुर्भाग्य पाया। इसमें कौन सी बड़ी बात होगी, वो बहुत वहाँ बिजी रहते होंगे। क्या आपको पैसे तो जरूर भेजते होंगे ना? हाँ, पैसे तो भेजते हैं सर, पर 2 साल से मैंने उनको देखा तक नहीं। मुझे बहुत याद आती है सर, उनकी बहुत याद आती है। कोई बात नहीं संध्या जी, सोचिए और देखिए, यही तो जिंदगी का नियम है। आप अपनी जिंदगी जीजिए और उनको जीने दीजिए। आप यहाँ खुश रहिए, उनको वहां पे खुश रहने दीजिए। ये आपने बहुत अच्छा किया कि आप वृद्धाश्रम में आ गए। यहाँ के सब आप ही के उम्र वाले हैं। ऐश आराम की आप जिंदगी जिए और हफ्ते में 1 बार अपने बच्चे और पोतों से वीडियो या व्हाट्सएप पे जरूर बात करिए, तब आप एकदम खुश हो जाएंगे। अच्छा तो संध्या जी, अब मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ।
लेकिन अगले हफ्ते फिर आऊँगा और आपको तब मुस्कुराता हुआ देखना चाहता हूँ। नमस्कार नमस्कार बहन जी, मैं तब चलता हूँ। ठीक है, अब मैं नहीं रहूंगी मैं बिल्कुल भी। अब मैं हंसी खुशी से रहूंगी सर, हंसी खुशी से रहूंगी। चलिए सर, we will now go to Madam Samata, who has also joined just a week back. क्या है? ऐसे घूर घूर के क्यों देख रही हो? हाँ, कभी हारमोनी नहीं देखा है क्या? हाँ, इतना गुस्सा मैडम। नमस्कार 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 बहन जी। माफ कीजिए साहब, माफ कीजिए साहब, आपके ऊपर गुस्सा होने का मेरा कोई अधिकार नहीं है। माफ कीजिए साहब। साहब, अपनों से धोखा धक्का मिला है, दुनिया से क्या उम्मीद रखूं साहब? हाँ, माफ कीजिए साहब। अभी यही हारमोनियम मेरी साथी बन गई है साहब, इसी से मैं दुख प्रकट करती हूँ। आइए साहब, आप आइए, बैठिए। क्या हुआ बहन जी आपको? सुख के जिंदगी जीने के समय में ये दुख और दर्द की जिंदगी क्यों जी रहे हैं आप? क्या हुआ आपको? साहब, बहुत पहले पति का देहांत हो गया। नसीब समझकर जिंदगी से समझौता किया है साहब। एक बेटा, माँ बाप बनकर बेटे को बड़ा किया साहब, शादी किया। सोचा था अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं साहब। पहले पहल बहू से भी ना बहुत इज्जत और प्यार मिला है साहब। इतनी सारी मिठाइयाँ, लड्डू, मैसूर पाक संदेश, चमचम भी है। बहू, बहू, इतनी सारी मिठाइयाँ। हाँ हाँ माँ जी, आपको मीठा बहुत पसंद है ना, इसलिए मैंने घर में ये बनाया है। अब तो आपका रिटायरमेंट हो गया है, शांति से जिंदगी काटिए। हम लोग हैं ना आपकी सेवा में, कुछ नहीं होगा। अच्छा माँ जी, एक बात बताइए, आपकी पसंद का खाना क्या है? वही बनेगा आज रात को। ये तो बहुत अच्छी बात है। पूरा सुनिए ना साहब, पूरा सुनिए ना। बहू में बेटी को देखकर बहुत खुश हो गई थी साहब, बहुत खुश हो गई थी। और उसको खुश करने के लिए हमेशा वो जो भी बोलती थी, हाँ हाँ, मुंह हिला हिला कर हाँ बोलती थी साहब। फिर एक दिन, मोहन तुम यहाँ से चले जाओ। आखिर हुआ क्या, बताओ तो सही तुम। मोहन, मम्मी जी ने अगर तुम्हें देख लिया तो वो अशोक को हम दोनों के बारे में सब कुछ बता देंगे। ये तुम क्या कह रही हो? जब मम्मी जी को पता चला कि आज तुम आ रहे हो तो उन्होंने मुझे धमकी दी है कि वो हम दोनों के बारे में अशोक को सब कुछ बता देगी। अशोक के हाथों हम दोनों को मरवा देगी। तुम फिक्र मत करो, कुछ नहीं होगा। मोहन प्लीज प्लीज मेरी बात सुनो, यहाँ से चले जाओ। मैं आपको माफ नहीं कर सकती अगर तुम्हें कुछ हो गया। प्लीज प्लीज चले जाओ। सुमन बस, न तुम्हें कुछ होगा ना मुझे कुछ होगा। वो बुढ़िया हमारे रास्ते के बीच आ रही है, मैं उसे भी खत्म कर देता हूँ। बहू, ये डॉक्यूमेंट्स और मेरा चेकबुक यहाँ क्यों रखा है? माँ जी, ये फ्लैट तो बहुत ही छोटा है। ऐसा करते हैं, ये फ्लैट ना हम बेच देंगे। डॉक्यूमेंट्स में जरा साइन कर दीजिए तो।
आपके बैंक बैलेंस और इस मकान के पैसे से एक बड़ा सा फ्लैट ले लेंगे। वहां पे आराम से जिएंगे ना। ये ले बहू, ये ले। डॉक्यूमेंट्स में साइन कर दिया और चेक बुक भी साइन कर दिया, ठीक है? फिर क्या हुआ? साहब, मकान बिक चुका था। बैंक बैलेंस खत्म हो गया। बैंक बैलेंस खत्म। साहब, मकान के लिए पैसा कम पड़ा तो चूड़ियां निकाल के दे दिया साहब। देखिए, खाली हाथ देखिए साहब, खाली हाथ देखिए। इतना किया था बहू बेटे के लिए साहब। फिर थोड़े दिन के बाद बहू का बर्ताव में बड़ा परिवर्तन आया साहब। क्यों, क्या हुआ? बहू, टेबल पर नाश्ता नहीं है, रखना भूल गई हो क्या? माँ जी, बिना कुछ काम का खाते ही रहेंगे तो तबीयत खराब हो जाएगी। फिर डॉक्टर्स, मेडिसिन्स, खर्चा तो बहुत बढ़ जाएगा। इससे अच्छा कम खाइए और तंदुरुस्त रहिए। आज से एक ही बार खाना मिलेगा आपको। ओ माय गॉड, आपका खाना बंद हो गया? बेटा कुछ नहीं बोलता था? नहीं साहब, बेटा चुपचाप रहता था साहब। बेटा कुछ नहीं बोलता था। भूख लगती थी साहब, बहुत भूख लगती थी। मुझे ना बहुत गुस्सा आया। फिर बेटा और बेटे को मैंने बोला, देखो तुम लोग मेरा मकान कर दिया है, बेच दिया है, मेरा पैसा तो वापस दे दो। कोई आश्रम में रह लूंगी बाबा। ये हर दिन का किटकिट 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 मेरे से सुना नहीं जाएगा, मैं नहीं सुन सकती हूँ। फिर क्या हुआ? बेटे या बहू को तो बहुत गुस्सा आया होगा। सुनिए तो, ए जी, सुनिए जरा, इधर आइए। हर दिन इस बुढ़िया का ये दुखी सा चेहरा देखना पड़ता है। मेरे से तो नहीं होगा रे बाबा, मैं तो चली जाऊंगी। मैं बता रही हूँ आपको, बीवी और माँ के बीच में चुन लीजिए आप। आखिरी बार कह रही हूँ। अरे रे बहन जी, आपसे तो बहुत गलत हुआ। अच्छा फिर बताए, फिर क्या हुआ? साहब, अगले दिन बड़ा गाड़ी आया। सब सामान चढ़ रहा था, सब सामान। मैंने सोचा सब लोग नए मकान में शिफ्ट कर रहे हैं, लेकिन साहब मेरा सामान नहीं चढ़ा, मेरा सामान छोड़ दिया सब। एक झटके में मेरा बेटा चला गया साहब। मुझे अकेला छोड़ दिया, मुझे अकेला छोड़ दिया है साहब। साहब बोलिए साहब, मेरा बेटा ऐसा क्यों किया मेरे साथ साहब? मेरे साथ क्यों किया बेटा? क्या मैं इतनी बुरी हूँ क्या साहब? इतना बुरी हूँ क्या? बोझ बन गई क्या मैं उसके लिए साहब? क्यों किया ऐसा साहब? 9 महीने जब पेट में था, मैं कभी भी उसको भारी नहीं समझा था साहब। 1 सेकंड के लिए भी भारी नहीं समझा था
बहुत नाराज हूँ मुझसे, बहुत नाराज हूँ साहब। अंदर आग जलती है साहब, हर दिन आग जलती है। दुनिया में सबसे नाराज हूँ साहब, सबसे नाराज हूँ। भगवान से भी नाराज हूँ मैं, भगवान भी। साहब हर दिन प्रार्थना करती हूँ भगवान से, भगवान मुझे उठा ले, उठा ले, मुझे उठा ले इस दुनिया से। अभी क्या दिखाने का बाकी रह गया है रे भगवान, उठा ले, उठा ले। साहब साहब भगवान को भी दया नहीं है मेरे ऊपर, फिरता ही है भगवान भी। मुझे नहीं जीना है साहब, मुझे नहीं जीना है इस दुनिया में, नहीं रहना है, नहीं जीना है मुझे। बहन जी इतना मत रोइए, इतना मत रोइए, संभालिए अपने आप को, संभालिए अपने आप को। देखिए बहन जी, जिंदगी एक बहुत मधुर चीज है, इसको शांति से, आराम से, सुख से जीना चाहिए। पिछले का पन्ना देखने से कोई फायदा नहीं, आगे बढ़िए। हो सकता है बहन जी एक दिन बच्चा और आपकी बहू अपने गलती को महसूस करके वापस आ जाए, ये भी तो हो सकता है ना। ये आपने बहुत अच्छा काम किया कि आप वृद्धाश्रम में आ गए। मेरे को सुनने में आया कि आप बहुत अच्छा गाना गाते हैं, बहुत अच्छा हारमोनियम भी बजाते हैं। सबके साथ में समय बिताइए, सबको गाना सुनाइए, हो सकता है कुछ लोगों को गाना सिखाइए भी, ठीक है ना। जिंदगी को मजे से जीने की कोशिश करिए। मैं तो बहन जी यही बोल सकता हूँ, क्योंकि इसके आगे बोलने की जरूरत नहीं है। आप बहुत समझ बूझ के औरत है। अच्छा बहन जी, तो अब मुझे इजाजत दीजिए, लेकिन हाँ रोइएगा मत, हंसिए, और अगले हफ्ते मैं फिर आऊंगा, लेकिन उस बार आपका गाना सुनूंगा म्यूजिक के साथ में, ठीक है ना बहन जी। मैं चलता हूं तब, नमस्कार नमस्कार। And Nirmala madam, before I leave, I thought I'll tell you one thing. You know, this type of people might go into a serious clinical depression. So you tell the caregivers to be in touch with her, and you should talk to her. You know, the talking to her is extremely important. So I'll take a leave, and again next week, maybe next Sunday or Monday, I'll come to you. I'll talk to you before that. Thank you very much. Bye bye. Okay, sir. We will take action as suggested. Thank you very much for the visit and see you soon. Namaste, sir. So friends, you saw the life experiences of some of the senior citizens. They are indeed tragic, and we must look after them very, very carefully. That's our responsibility as the socially responsible citizens. And that's the spirit behind the series, between the series of the skits which we are contemplating on behalf of the My Retired Life Foundation. Thank you very much for your support.